بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ NN 24 نیوز HD کے ساتھ محوسمہ الیاس شامل کرتے ہیں نیوز بولیٹن۔ رخ کرتے ہیں کوہاٹ کا، جہاں گاؤں میٹھا خان میں اہم مشاورت اجلاس، کل ہونے والے جلسے کی تیاریوں کا جائزہ۔ علاقہ بنگش کے گاؤں میٹھا خان میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے معاون خصوصی برائے اطلاعات شفیع جان کے پرسنل سیکریٹری انتظار علی کے حجرے میں اہم مشاورت اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس کے مقصد کل ہونے والے جلسے کی تیاریوں کا جائزہ لینا اور علاقہ بنگش کو درپیش مسائل پر تبادلہ خیال کرنا تھا۔ اجلاس میں علاقہ بنگش کے تمام کارکنان نے بھرپور شرکت کی اور جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے مختلف تجاویز پیش کی۔ شرکا نے جلسے کے انتظامات، عوامی شرکت، نظم و ضبط اور دیگر امور پر تفصیلی گفتگو کی گئی اور مشاورت بھی کی گئی تاکہ پروگرام کو بھرپور انداز میں منعقد کیا جا سکے۔ میٹنگ کے دوران علاقہ بنگش کو درپیش بنیادی مسائل، ترقیاتی منصوبوں، سڑکوں کی تعمیر، تعلیم، صحت اور دیگر عوامی فلاحی امور پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ شرکا نے اس بات پر بھی زور دیا کہ عوامی مسائل کے حل کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں اور متعلقہ حکام تک عوام کی آواز پہنچائی جائے۔ خبر شامل کرتے ہیں جیکب آباد سے، جہاں SSP جیکب آباد کیپٹن فیضان علی کے سخت احکامات برائے اسمگلنگ کی روک تھام کو مد نظر رکھتے ہوئے جیکب آباد پولیس کی کامیاب کارروائیوں کا تسلسل جاری۔ مختلف اقسام کا نون کسٹم پیڈ سامان اور ایرانی ڈیزل اور آٹے کی اسمگلنگ کی کوششیں ناکام۔ مجموعی طور پر 76 کلو گرام 40 عدد گٹکا، آٹے کی بوریاں، 300 لیٹر ایرانی ڈیزل ریکور کر لیا گیا۔ اسمگلنگ میں استعمال ہونے والی 2 شاہزور ٹرکس، 2 لوڈر رکشے اور 7 موٹر سائیکلیں پولیس کسٹڈی کر کے قانونی کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ برآمد شدہ نان کسٹم پیڈ سامان کو قانونی کارروائی کے بعد کسٹم حکام کے حوالے کر دیا جائے گا۔ SHO تھانہ صدر انسپکٹر شاہ جہان اشاری بما سٹاف پولیس کی عمرانی لاڑھو پوسٹ پر کامیاب کارروائی۔ چیکنگ کے دوران ایک مہران کار رجسٹریشن نمبر BMW 127 کے اندر موجود اسمگل شدہ نان کسٹم پیڈ 66 بنڈال ڈنڈا سگریٹ برآمد، قانونی کارروائی کے بعد کسٹم حکام کے حوالے کر دیا جائے گا۔ خبر شامل کرتے ہیں کندکوٹ سے، جہاں سیپکو فیڈر سے قیمتی تاریں چوری، 10 روز گزرنے کے باوجود مقدمہ درج نہ ہو سکا۔ سیپکو کندکوٹ ڈویژن کے سب ڈویژن 2 میں واقع دڑی فیڈر سے 11,000 kV کی ڈراپ کنڈکٹر تاریں نامعلوم افراد کی جانب سے چوری کر لی گئی۔ تاہم واقعے کی 10 روز گزرنے کے باوجود زائد عرصہ بھی گزر گیا لیکن تاحال مقدمہ درج نہ کیا جا سکا، جس پر شہریوں میں شدید تشویش پائی جا رہی ہے۔ تفصیلات کے مطابق سب ڈویژن 2 کے دڑی فیڈر کے 10 سے زائد پول سے قیمتی تاریں وہ نامعلوم چور اتار کر لے گئے۔ یہ واقعہ سیکشن تھانے کی حدود میں پیش آیا، مگر سیپکو عملے کی جانب سے سرکاری املاک کی چوری کا مقدمہ درج نہ کرانا سوالیہ نشان بن گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق چوری کے بعد نہ تو اسٹور سے نئی تاریں، کراس آرمز یا پولز فراہم کیے گئے ہیں اور نہ ہی متاثرہ فیڈر کی فوری بحالی کے اقدامات کیے گئے ہیں۔ اس کے برعکس سب ڈویژن 2 کے افسران نے مبینہ طور پر از خود اقدام کرتے ہوئے دڑی فیڈر کا مکمل لوڈ اسکاف فیڈر پر منتقل کر دیا، جو کہ شہر میں واٹر سپلائی کے لیے مختص ہے۔ واضح ہے کہ اسکاف فیڈر سندھ حکومت کے تحت شہر کو میٹھا پانی فراہم کرنے کے لیے منصوبے کے لیے منظور شدہ ہے، جہاں بجلی کے ذریعے ٹیوب ویل چلا کر شہریوں کو پانی فراہم کیا جائے گا۔ خبر شامل کرتے ہیں نوشہرہ سے، جہاں ڈپٹی کمشنر نوشہرہ عرفان اللہ مسعود کی ہدایت پر ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر فاطمہ خالق نے صاف شفاف خیبر پختونخوا مہم کے تحت کابل ریور نوشہرہ کلاں میں صفائی کے خصوصی سرگرمیوں کا معائنہ کیا۔ TMA اور لوکل گورنمنٹ کے زیر نگرانی صفائی ستھرائی کا عمل، جس میں ڈسین کی صفائیاں اور گلی کوچوں اور سڑکوں کی صفائی عمل شامل ہے، جس کا مقصد علاقے میں عوام کے لیے پاک، صاف، شفاف اور تندرست ماحول فراہم کرنا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں ٹنڈو آدم سے، جہاں ٹنڈو آدم میں ہولناک انکشاف، لاہور سے 2.5 ماہ قبل لاپتہ ہونے والا ٹیکسی ڈرائیور کا مبینہ طور پر قتل کرنے کا انکشاف۔ ڈسٹرکٹ رپورٹر سانگڑ عبدالرشید کوسر کے مطابق لاہور کے علاقے نشتر کے رہائشی 30 سالہ ٹیکسی ڈرائیور فیاض مسیح وہ رسٹار طور پر لاپتہ ہو گئی تھی، جس کے حوالے سے اب انکشاف ہوا ہے کہ انہیں ٹنڈو آدم لا کر قتل کیا گیا اور لاش کو ایک کرائے کے مکان میں دفن کر دیا گیا۔ بخبر سرائے سے معلوم ہوا کہ ٹنڈو آدم پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے شہر کے معروف ڈینٹل ڈاکٹر عابد رسول اور اس کے داماد شان امام رہائشی لاہور اور ایک اور ملزم کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق ملزمان کی نشاندہی پر موڈل ٹاؤن کے کرائے کے مکان میں کھدائی کی گئی، جہاں سے مقتول کا پاؤں برآمد ہوا، جس کے بعد کھدائی عارضی طور پر روک دی گئی۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ مزید کھدائی اور قانونی کارروائی لاہور پولیس کی آمد کے بعد مکمل کی جائے گی۔ جائے وقوع کو سیل کر دیا گیا ہے اور سخت سیکیورٹی تعینات کر دی گئی ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں نوشہرہ سے، جہاں NN 24 نیوز ڈسٹرکٹ رپورٹر محمد شراز خٹک پشاور میڈیا قوانین کے خلاف صوبائی کنونشن کا اعلامیہ جاری، پیکا ترامیم مسترد، کالے قانون کے خلاف سیاسی قیادت اور صوبہ بھر کے صحافی ایک، پارلیمنٹ ہاؤس کے گھیراؤ کا اعلان۔ پشاور پریس کلب اور خیبر یونین آف جرنلسٹ کی میزبانی اور پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے تعاون سے منعقدہ میڈیا لاس، ریگولیشن اینڈ ایتھکس کی عنوان پر ایک بڑے صوبائی کنونشن نے وفاقی حکومت کی جانب سے پیکا قوانین میں
की गई हालिया तरमीम को जुल्माना काला कानून करार देकर बाज़ाब्ता तौर पर मुस्तरद कर दिया। पेशावर प्रेस क्लब में मुनक्किदा इस कन्वेंशन के दौरान सदर खैबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट काशिफुद्दीन सईद ने एक जामिया करारदाद पेश की, जिसे खैबर पख्तूनख्वा के तमाम अजला से आए हुए सैकड़ों सहाफ़ी ने भारी अक्सरियत से मंजूर किया। इस करारदाद में मुतालबा किया गया कि सहाफ़ियों के खिलाफ पीका के तहत कायम तमाम मुकदमात फौरी वापस लिए जाएं और रियासती चौथे सतून के खिलाफ सियासी इंतकाम बंद किया जाए। खबर शामिल करते हैं मंगला से, जहां SHO थाना मंगला कैंटो टीम की अहम कार्रवाई। इक़दाम कत्ल के मुकदमे में मुलव्वस मुलजिम गिरफ्तार। मज़ीद बात करते हैं ब्यूरो चीफ जेहलम सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह से। जी बिल्कुल, SHO थाना मंगला कैंट और टीम की अहम कार्रवाई। इक़दाम कत्ल के मुकदमा में मुलव्वस मुलज़म गिरफ्तार, नाजायज़ असला बरामद। थाना मंगला कैंट पुलिस ने बरवक्त और मौसर कार्रवाई करते हुए इक़दाम कत्ल के मुकदमा में मुलव्वस मुलज़म को गिरफ्तार कर लिया। मुलज़म से बंदूक 12 बोर बीमा एमुनेशन बरामद करके कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया और मज़ीद तफ्तीश जारी ताकि मुकदमा के तमाम पहलू को मेरिट पर यकसू किया जा सके। मुलज़म को ठोस शवाहिद के साथ चलान अदालत किया जाएगा और करार की सजा दिलवाई जाएगी। DPO जेहलम शफीक अहमद चौधरी का कहना है जुर्म पेशा नासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी और अवाम के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। जी खबर शामिल करते हैं कंबर से, जहां कंबर नसीराबाद नाका में चोर सरगर्म दुकानदार गैर महफूज। सिटी थाना के पुलिस गायब। कंबर के नसीराबाद नाका में पुलिस आफ्ताब शूज और मोबाइल शॉप से नामालूम चोर गाहक के रूप में शूज खरीद करने के बहाने शॉप के मालिक जुबैर खान के ओप्पो मोबाइल बड़ी महारत से चोरी करके आसानी से फरार हो गए। इस मौके पर शॉप मालिक जुबैर खान का कहना था कि शहर में चोर सरगर्म हो चुके हैं। चोर दुकानों में गाहक के रूप में दाखिल होकर दुकानों का सफाया कर लेते हैं। दुकान में 2 अफराद गाहक के रूप में दाखिल होकर मुख्तलिफ शोज देखकर बड़ी महारत से मोबाइल चोरी करके ले गए, जबकि वाक़े की तलाश सिटी थाना में दर्ज करवाई, मगर सिटी थाना पुलिस से तलाक के बावजूद जाए वक़्त पर नहीं पहुंची और ना ही वाक़े में मुलव्वस जवाबदारों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई की। ताहम पुलिस के इस अमले में दुकानदारों से बेची छा गई। मुतासरा दुकानदारों ने SSP कंबर और SHO सिटी से मुतालबा किया कि नोटिस लेकर वाक़े में मुलव्वस जवाबदारों को गिरफ्तार करके चोरी शुदा मोबाइल वापस करके नसीराबाद नाका पर पुरअमन कायम करे। वाक़े में मुलव्वस जवाबदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई न करने की सूरत में नसीराबाद नाका पर एहतजाज किया जाएगा। अब आपको इस्लामाबाद लिए चलते हैं, जहां इस्लामाबाद के थाना I9 की हुदूद में SHO I9 और उसकी टीम ने एक चोर ग्रोह को 2 रुकन से चोरी शुदा 15 अदद मोटरसाइकिल बरामद कर ली। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं इस्लामाबाद में हमारे क्राइम रिपोर्टर राजा जमील से। जी जमील, अपडेट कीजिएगा। जी, इस्लामाबाद SHO I9 और उनकी टीम ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई करते हुए चोर गिरोह के 2 रुकन को गिरफ्तार करके 15 अदद मोटरसाइकिल जिनकी मालियत लाखों रुपए बनती है बरामद कर लिए। इस सिलसिले में SP इंडस्ट्रियल एरिया जोन असनैन वारिस ने चोरी शुदा 15 अदद मोटरसाइकिल उनके असल मालकान के हवाले कर दिए। इस ज़िम्मन में SP I9 का कहना था शहरियों को उनके कीमती असासों से महरूम करने वालों के खिलाफ बला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएंगी। जहां पर हम अपने नाज़रीन को बताते चलें, ये कार्रवाई इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस ने सेफ सिटी कैमरों और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से की और चोर गिरोह का सुराग लगाने में इस्लामाबाद पुलिस को एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई। जी खबर शामिल करते हैं नुशैर फरोज से, जहां नुशैर फरोज के शहर ठारूशाह के टाउन मुलाजमीन के झूठे इल्जामात के खिलाफ सेंटर इंस्पेक्टर सराज अहमद की मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने बताया कि ये सब के सब ड्यूटी चोर हैं। कलाम पाक उठा के ड्यूटी माफ कराने वालों को शायद मालूम नहीं है कि हक हलाल की कमाई की तलकीन भी इसी पाक किताब में मौजूद है। नुशैर फरोज के शहर ठारूशाह में मुकद्दस किताब की आड़ में ड्यूटी चोर मुलाजिम का घिनौना खेल ब्लैकमेलिंग का ड्रामा है। नकाब साथ ही मुलाजमीन के जाली दस्तखतों से कोर्ट केस कराने का इंकशाफ। शहरियों और कौंसल समेत दीगर मुतासरा ठारूशाह टाउन मुलाजमीन की भी तहरीरी शिकायत सामने आ गई। तफसीलात के मुताबिक ठारूशाह टाउन कमेटी में फरशनास अफसरान को ब्लैकमेल करने के लिए मजहबी कार्ड का इस्तेमाल ड्यूटी चोर और नाहल मुलाजिम ने अपनी चोरियां छुपाने के लिए मुकद्दस किताब को हथियार बना लिया। स्टेशन इंचार्ज सराज अहमद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ड्यूटी चोर मुलाजमीन अपनी गफलत पर पर्दा डालने के लिए कुरान पाक का सहारा लेकर इदारों को यरगमाल बनाने की नापाक कोशिश कर रहे हैं। ये महज एहतजाज नहीं बल्कि इदारों की तौहीन और माशरती इक़्तिदार की धज्जियां उड़ाने के मुतरादिफ है, जिसे किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खबर शामिल करते हैं मीरपुर खास से, जहां मीरपुर खास में रियासती इदारों की बड़ी कार्रवाई। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में करोड़ों रुपए की करप्शन का इंकशाफ सामने आ गया। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में करोड़ों रुपए की करप्शन गरीब और बेवाओं को मिलने BISP वाली अमदादी रकम में मुनज़्ज़म तरीके से गैर कानूनी तरीके से कटौती की जा रही थी, जिसमें फ्रेंचाइज मालकान, ड्यूटी डिवाइस होल्डर्स और एजेंट गिरफ्तार कर लिए गए हैं। दौरान तफ्तीश इंकशाफ सामने आया है कि इस करप्शन में पुलिस स्पेशल ब्रांच BISP अफसरान, वफाकी
तहकीकाती इदारे सहाफ़ी भी शामिल। दौरान तफ्तीश जब जैज़ कैश फ्रेंचाइज मालिक सुहेल मलिक को गिरफ्तार कर लिया तो सुहेल मलिक ने इंकशाफात करते हुए बताया कि BISP का सिस्टम जैज़ फ्रेंचाइज चलाते हैं। फ्रेंचाइज के तौर पर नवाज़िश मेमून को नुमाइंदा रखा जो अफसरान पुलिस और डिवाइस के दरमियान राब्ते का किरदार अदा करता है। सुहेल मलिक ने इंकशाफ करते हुए कहा कि 35 डिवाइस हैं जो बेनिफिशरी औरतों से 3 से 5 हज़ार की गैर कानूनी कटौती करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद सुहेल वल्द अब्दुल रशीद है और मैं टंडो आदम का रिहायशी हूँ। इस वक्त मीरपुर ख़ास में जो है मैं जैज़ फ्रेंचाइज का मालिक हूँ और ये बयान जो है मैं अपने ज़मीर को मलाल करने के लिए दे रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादती हुई है बेनिफिशरी के साथ, मुस्तहिक ख़वातीन के साथ। अच्छा, जो BISP का प्रोग्राम है वो जैज़ फ्रेंचाइज के थ्रू चलता है और जैज़ कंपनी ने अपना जो एक नुमाइंदा मुकर्रर किया हुआ है नवाज़िश मेमन मीरपुर ख़ास में, जो कि सारी चीज़ों को देखता है। BISP ऑफिशल्स के साथ भी वो राब्ते में है, इसके अलावा डिवाइस होल्डर्स के साथ भी वो राब्ते में है, इसके अलावा जो है वो कंपनी के ऑफिसर्स के साथ भी वही राब्ते में। तो हमारे पास जो है वो टोटल जो है वो 35 डिवाइस हैं। तो ये एजेंट्स काम कर रहे होते हैं अपनी लोकेशंस पर और एजेंट जो है अपनी जो बेनिफिशरीज़ हैं उनसे 5 से लेकर 8,000 रुपये तक की डिडक्शन कर रहे होते हैं और फ्रेंचाइज़ को हर कार्ड पर 500 से 1,000 रुपये तक पैसे मिल रहे होते हैं। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर और भी बहुत सारे लोग होते हैं जो कि एजेंट्स के थ्रू जो है अपना काम कर रहे होते हैं और उनमें FIA मीरपुर ख़ास भी है जो हर डिवाइस पर 50 से 60,000 रुपये लेती है और पुलिस का भी इसके अंदर किरदार है। पुलिस भी 40 से 50,000 रुपये पर डिवाइस लेती है। और एक सुहेल नामी बंदा है जो कि जिसने मुझे फ़ोन किया एक दफ़ा और मुझे कहा कि आप मुझे बुलाया और 30,000 रुपये उसने वसूल किए। अच्छा, ये सारी सेटिंग जो है वो हमारे TSS नवाज़िश मेमन के ज़रिए होती है और अज़लान कम्बो वल्द अब्दुल रशीद नवाज़िश मेमन का ख़ास फ्रंट एजेंट है और अज़लान मेमन के पास जो है वो 7 डिवाइसेस हैं। हर साल 18 अप्रैल का दिन दुनिया भर में कदीम अमारात में छुपी पुरानी तहजीब, तारीख, सकाफत और तमद्दुन को आलमी वर्सा के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद अपने खिते की रफ़ाई कद की बुलंदी को आने वाली नस्लों में जिंदा रखना और आने वाले वक्त में नस्ल नो को मशाल राह बनाना है। आलमी यौम सकाफत के हवाले से महकमा सकाफत पंजाब के ज़िले तमाम टेक्सला के अजायब घर से एक रैली का एहतमाम किया गया जो टेक्सला के अजायब घर से शुरू होकर तहसील हेड क्वार्टर हॉस्पिटल टेक्सला तक एहतमाम पज़ीर हुई। रैली में सिविल सोसाइटी के साथ साथ स्कूल और कॉलेज के तलबा और तालिबात ने शिरकत की। शुरका का कहना था कि आलमी यौम सकाफत मनाने का मकसद ये था कि आइंदा आने वाली नस्लों को इस बात से आगाह किया जाए कि हमारे वर्सा ही हमारी पहचान है और टेक्सला की गंदरात तहजीब को दुनिया भर में उजागर करना वक्त की अहम जरूरत है। टेक्सला म्यूजियम के साथ ही सरकप में तकरीब मुनक्किद हुई जिसमें टेक्सला म्यूजियम के अफसरान समेत इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन मलिक ताहिर सुलेमान टेक्सला सदीकी फैमिली के बच्चों बच्चियों खवातीन स्कूल के बच्चों ने शिरकत नहीं की। आलमी यौम सकाफत मनाने का मकसद ये है कि हम अपनी तहजीब और वर्सा को अगली नस्लों तक मुंतकिल कर सके। रुख करते हैं मीरपुर खास का, जहां मीरपुर खास में मुबैना तौहीन सहाबा का मामला, मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। अहले सुन्नत वल जमात रहनुमाओं की SHO अमीन मरी से मुलाकात, शफाफ तहकीकात और सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा। मीरपुर खास में सहाबा किराम की मुबैना शान में गुस्ताखी के इल्जाम पर अहम पेशरफ्त सामने आई है। अहले सुन्नत वल जमात मीरपुर खास के रहनुमाओं ने इस हवाले से सिटी पुलिस स्टेशन के SHO अमीन मरी से मुलाकात की और वाक़े पर गहरी तशवीश का इजहार किया। पुलिस ज़राए के मुताबिक मोहम्मद हमजा अव्वल नईम कुरैशी के खिलाफ मुबैना तौहीन सहाबा के इल्जाम में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ज़राए के मुताबिक मुलजिम को सुबह सवेरे ही गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके बाद कानूनी तकाजे मुकम्मल करते हुए बाकायदा FIR भी दर्ज कर दी गई। अहले सुन्नत वल जमात के रहनुमाओं ने मुतालबा किया है कि वाक़े की मुकम्मल और शफाफ तहकीकात की जाए और जिम्मेदारान के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। पुलिस हुकाम का कहना है कि केस की तफ्तीश जारी है और तमाम पहलुओं का बारीकबीनी से जायजा लिया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको पता है कि आज जिनके अंदर किसी बदबख्त ने जो है वो सहाबा किराम की गुस्ताखी की है और उस पर हज़रत उमर, हज़रत अबू बकर, हज़रत उस्मान के हवाले से उन्होंने गुस्ताखी की है, इसकी सोशल मीडिया के ऊपर फुटेज भी आई है और थोड़ा साथी ये कि इस चीज़ के लिए भरपूर एहतियात भी किया। साथी उन्होंने हमने रब्ता किया है इंतज़ामिया से भी। इंतज़ामिया रब्ते में यह बताया कि हम DIV ब्रांच और SP ऑफिस के अंदर SP साहब को इतला कर चुके हैं इस चीज़ की और फौरी कार्रवाई के लिए हमें ऊपर से भी अहकाम मिले हैं और इंशाल्लाह आज रात को जो है वो अपने मतलब कुछ ज़रूरियात जो है वो पुलिस की डिपार्टमेंटल जो ज़रूरियात हैं वो पूरी करके इंशाल्लाह आज रात को उसको गिरफ्तार किया जाएगा। उसमें साथ ही ये है कि पूरे अंदाज के अंदर एक दूसरे से राब्ते में रहें और दुआ रहें कि गुस्ताख जो है वो जल्द कानून के कटघरे में आए,
اور इंशाल्लाह जब तक ये काम मुकम्मल नहीं होगा हम उसका पीछा जारी रखेंगे, गुस्ताखान साहबा का हम पीछा जारी रखेंगे इंशाल्लाह। न्यूज़ स्टूडियो से कल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबर और उनकी तफसीलात के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमल के साथ।